We are now ready to begin the conversation. Megha Sharma, Executive Editor of NewsX, takes this forward. Megha, over to you. Thank you, Devika. And I thank all of you for joining me for this discussion. We're talking about the Places of Worship Act 1991. There has been a lot of controversy, heated debate that has been witnessed inside the Parliament as well as outside when it comes to this enactment that was brought about in 1991 under the Prime Ministership of P. Narasimha Rao. Now, what this act actually speaks about is that it freezes the religious character of a place of worship with a cutoff date of 15th of August 1947, with the exception, of course, of the Babri Masjid Ayodhya Ram Mandir site, which has been resolved with the Supreme Court passing a judgment in favor of the Ayodhya Ram Mandir temple. So why is it that this issue continues to emerge, continues to recur time and again? And the bigger question about whether there is a need to review this enactment, review this law, and how do we move forward? How do our parliamentarians move forward? How should the courts move forward in carrying out this very sensitive subject? All right, I'm going to start my conversation over here, and I'm going to take the first response from Mr. Mukhtar Abbas Naqvi ji. And the question about whether the country today, its countrymen are living in denial about the temples, the Hindu temples, which were destroyed under the Mughal era, under the various invaders that came into India and caused wreckage, destructed the temples. देखिए हमारा देश इस वक्त आज़ादी के अमृत काल के दौर से गुजर रहा है और इस अमृत काल में किसी भी तरह से सांप्रदायिकता का जहर नहीं बल्कि समावेशी सोच का, सद्भाव का अमृत काल चाहिए। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक विशेष परिस्थितियों में आया था और उसके बाद लगभग मैं मानता हूं कि बहुत कई दशकों तक किसी भी तरह से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट थे उसके बाद से कोई ऐसा विवाद या किसी ऐसा तरह की समस्या नहीं आई। एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद लगातार जो एक पूरा हमारा वक्त सिस्टम है जिसने कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की है उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की की वजह से हर दिन जो है वो किसी न किसी जगह पर जो वक्त सिस्टम में लोग हैं, वक्त सिस्टम को मैं ये नहीं मानता कोई बुरा है, लेकिन जो डोमिनेट कर रहे हैं, जिन्होंने उस पर कब्जा कर रखा था, जो वक्त माफियाज थे, वो डिफरेंट प्लेसेस पर जो है वो दावे करने लगे, उसका जो है वो रिएक्शन दिखाई पड़ने लगा। हमारा मानना है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि उसकी वो स्क्रूटनी करेंगे, लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और गुनाह का जो है वो ठीकरा जो है वो आज की वर्तमान पीढ़ी पे नहीं ठोकना चाहिए और उस वर्तमान पीढ़ी को भी समझना चाहिए कि किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत को जो है वो उसको सुरक्षा कवच न बन करके उसको करेक्ट करने में सहयोग करना चाहिए। ओके, सलमान जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? What do you think? Is the country, are the countrymen today in denial that there were actually temples that were destroyed in northern part of the country and therefore at this point in time are wanting that these surveys be conducted, excavation happen at the sites of where mosques have been built? I think it's important to keep in mind that this is not, there may be a historical context in which this act was passed, but the act was not passed specifically focused on any specific community. There was a very important exception that one sense was required to be made, which was an exception made for Ayodhya. And that exception at that time appeared, and I hope that it continues to appear, as the putting a ceiling on any issues that could arise between communities in the country. And that's not just Hindu, Muslim communities. Communities
communities in the country are many. There are Buddhists, there are Jains, there are Sikhs, there are Muslims, there are Christians, there are Hindus. So decisions between them of the past should not be raked up is basically what the purpose of this legislation was. And this is not new to India. This has been done everywhere in the world. The methodology may be different. In South Africa, when the Truth and Reconciliation Commission was formed, idea was, let us move on, forget the past and move on. Whatever had to happen in the past has happened. Now let's move on and let's find a line that we can draw. India, I believe, consensually drew the line in 1947. This was done in 1991, but we chose to do it for 15th of August 1947, and it was a consensual approach. It was not a partisan approach. It was a consensual approach. And now to reopen it and to say, well, what happened in the past, then the whole issue about who did what to whom in the past will be raked up. And you are not just raking up a mandir or a masjid issue. You are raking up an entire past that would say that India cannot live together. We are to live together. It's our commitment that we must live together. And whatever is needed to be done for us to be able to live together comfortably, I think that's what has been done. And that is what we must respect. And I do sincerely hope that the future will bring that about. Justice Iqbal Ansari, now, the challenges that have been made in the slew of petitions that have been brought up in the court of law, speaking about how a claim being made that this particular law, this particular act is actually a violation of the right to freedom, right to equality, the right to religious freedom. What do you make of these contentions in the court of law that are being made by the petitioners? The question that you have put is basically to be answered by the Supreme Court in the dispute which has been raised before it as to whether this is constitutional or not. We have to remember that the Constitution of India envisages, amongst other things, fraternity, which means there has to be amity amongst the people. An emphasis is on integrity. We can't do anything which will disintegrate the society, be it on the religious line, be it on the linguistic line, or regional, anything. So any kind of situation which will lead to disintegration has to be stopped. Now, as far as the freedom of religion is concerned, it's already there. But will my freedom of religion be complete only when I demolish one community's place of worship and go to my place? Because if you look into the pages of history, you will find that all through the ages, places of worship and prayer have been demolished, not by one religious community, by everyone. So in that event, those who are now claiming, it is not that their forefathers are not demolished. They had also demolished. But where are we going to? There has to be some end. And the society has to live in peace without tension. I have no doubt that if you read plainly, perhaps the act leaves the scope for survey for the purpose of research. But to say that the survey has to be for the purpose of determining the title of the place of prayer or temple is wrong. Right. Because if it is only for academic purpose, yes, it is open. But if you look at it, suit has been filed for title. It is not for making research that I will find out what is my past. Yes. It is for a place of worship. That we have to, in that place of worship, obviously, if there is something called in law, permissive interpretation of an act. The purpose was to say that we stand where we are. We will not read the past. That's the purpose. So long as the act remains, that purpose has to be fulfilled by every court. And that means that you will not do anything which will lead to any kind of disruption in the society. When Justice Chandrachud
opened it. He said its survey is open. Yes, it is open, but not open for the purpose of bringing a claim of another person. It is only for the purpose of academics. You can say that yes, Aurangzeb, for instance, I'm just taking the name of Aurangzeb because he is the most controversial person amongst the Mughals. He built a Jama Masjid in place of a temple. That research is probably possible, but beyond that, it's not. That's my idea. Okay. And that's the how my idea is with regard to Constitution of India and India as a nation. Okay, all right. We also have with us Syed Nasir Hussain has just joined, but before I go to Syed Nasir Hussain ji, Ashwini Upadhyay, he's, Ashwini ji, you are one of the petitioners who challenged the act in the court of law. Now, the very same point that has been raised by Justice Iqbal Ansari, that surveys can be allowed to be conducted, but what should be the intent behind actually putting out that suit and seeking from the court of law to allow for the survey to be conducted? देखिए, ये मामला हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं है, जबरदस्ती इसको हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। हम स्वतंत्र हो चुके हैं, संविधान के प्रियम्बल पे पहला शब्द है सोवरेंटी, हम संप्रभु हो चुके हैं। संप्रभु का मतलब होता है गुलामी का निशान नहीं होना चाहिए। इस कानून का नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्लेस ऑफ प्रेयर। जो मूर्ति पूजक होते हैं वो वर्शिप करते हैं, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो प्रेयर करते हैं। इसमें लिखा है कि रिलीजियस कैरेक्टर कंटिन्यू रहेगा। रिलीजियस कैरेक्टर क्या है? मैं काले कोट में हूं सुप्रीम कोर्ट में तो मैं वकील जैसा दिखता हूं, मैं हॉस्पिटल में सफेद कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा, मैं पुलिस लाइन में खाकी का कपड़ा पहन लूं तो मैं इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा, मैं तिलक लगा लूं तो हिंदू दिखूंगा, टोपी पहन लूं तो मुस्लिम दिखूंगा, क्रॉस पहन लूं तो मैं क्रिश्चियन दिखूंगा और साफा बांध लूं तो मैं सिख दिखूंगा। ये कानून अपीयरेंस की बात नहीं करता, ये कानून रूप की बात ही नहीं करता, ये कानून कहता है कैरेक्टर कंटिन्यू रहेगा। तो जस्टिस चंचूड़ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कैरेक्टर, जैसे मेरा क्या कैरेक्टर है आप मेरे कपड़े से नहीं कर सकते, आपको मेरा कैरेक्टर जानने के लिए मेरा सर्वे करना पड़ेगा, मेरा हमसे बातचीत करना पड़ेगा। वैसे ही किसी भी स्ट्रक्चर को देख के आप ये नहीं डिसाइड कर सकते इसका कैरेक्टर क्या है। Okay. और ये कानून मैं आपको समराइज करता हूं। देश स्वतंत्र हो चुका है और सरकारें जो बनती हैं वो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बना सकती। दूसरा, आप कोर्ट का दरवाजा नहीं बंद कर सकते। आपने वक्फ एक्ट बनाया, कोर्ट का दरवाजा बंद किया, लेकिन कम से कम एक छोटी विंडो दिया वक्फ ट्रिब्यूनल की। इस कानून में तो आपने वो विंडो भी बंद कर दिया। आप अगर वास्तव में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना रहे थे तो प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड भी बनाते, प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल भी बनाते और वहां हमें जाने का रास्ता देते कि भाई हमें जहां लगता है वहां चले जाए, वहां जाके देख ले। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये कानून बनाया गया पब्लिक ऑर्डर की आड़ में, और पब्लिक ऑर्डर सेंटर का सब्जेक्ट ही नहीं है, पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में काम का बंटवारा है, पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं, इसलिए सेंटर के पास पावर ही नहीं थी। तीसरी बात, जस्ट मैं समराइज कर रहा हूं क्योंकि 30 सेकंड, ये कानून हमारे देवी देवताओं में भेदभाव करता है। राम भक्तों के लिए जितना महत्वपूर्ण अयोध्या है, कृष्ण भक्तों के लिए उतना महत्वपूर्ण मथुरा है, शंकर जी के भक्तों के लिए उतना महत्वपूर्ण अपना काशी है, दुर्गा के भक्तों के लिए उतना महत्वपूर्ण भद्रकाली है, सरस्वती के भक्तों के लिए उतना महत्वपूर्ण भोजशाला है। ये कानून तो हमारे देवी देवताओं में भेदभाव करता है। दूसरा, ये हिंदू लॉ के भी खिलाफ है, इस्लामिक लॉ के भी खिलाफ है। हिंदू लॉ के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वंस टेम्पल ऑलवेज टेम्पल। एक बार अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहां पूजा पाठ शुरू हो गया, जब तक विसर्जन नहीं होगा वो मंदिर ही रहेगा, उसका गुंबद बदल जाए, उसकी दीवार टूट जाए। भारत में हजारों की संख्या नहीं, लाखों की संख्या में मंदिर नहीं, पेड़ के नीचे पूजा होती है, नीम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे पूजा होती है। वहां शिवलिंग स्थापित कर देते हैं, पूजा शुरू हो जाती है। आंधी तूफान आता है, पेड़ खो जाता है, तो मंदिर का कैरेक्टर उसका खत्म नहीं होता। वैसे ही जब एक बार प्राण प्रतिष्ठा आ गई, कोई आक्रांता आया, उसने ढांचा बदल दिया, वहां नमाज शुरू करवा दिया, इसका मतलब ये नहीं वो मस्जिद हो गई। दूसरा, ये अन इस्लामिक जो है वो बता रहा हूं आपको, इस्लाम में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, आप होली कुरान को देख लीजिए, हदीसों को उठा के देख लीजिए।
मस्जिद वहां बनेगी जो भूमि समतल हो। वर्जिन शब्द यूज किया है, मैंने जो कमेंट्री पढ़ी उसमें मुल्ला की कमेंट्री, उसमें वर्जिन शब्द यूज किया। दैट लैंड शुड बी वर्जिन, समतल जमीन होनी चाहिए, या तो पुश्तैनी जमीन होनी चाहिए, या अपने जायज पैसे से खरीदी गई जमीन होनी चाहिए, या स्वेच्छा से दान की गई हुई जमीन होनी चाहिए। यहां आप बताइए, काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला में किसने दान किया था? और जो दूसरों के ऊपर मस्जिद बनाई जाए उसको मस्जिद नहीं, इस्लाम में उसको मस्जिद ज़रार कहते हैं, और मस्जिद ज़रार में नमाज पढ़ना हराम है, ये इस्लामिक लॉ कहता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये हिंदू लॉ के भी खिलाफ है, इस्लामिक लॉ भी खिलाफ है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। बड़ा सवाल तो ये भी उठा है कि हम कितने हजारों मॉस्क को डिमोलिश करेंगे और फिर कितने टेम्पल्स बनेंगे, और ये सिलसिला कब तक चलते रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये एक झूठ फैलाया जाता है कि आपको मस्जिद की जांच करने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी। हम चंद्रमा पे गए थे, क्या सीढ़ी बनाया? क्या सीढ़ी नहीं बनाया ना, टेक्नोलॉजी का यूज किया, चंद्रमा पे पहुंच गए, टेक्नोलॉजी यूज किया, मंगल पे पहुंच जाएंगे। हमने अग्नि ब्रह्मोस बनाया तो हमने पहले आग जलाई? क्या नहीं, अग्नि ब्रह्मोस बना लिया। आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी है, बिना दीवार टच किए यह बताया जा सकता है कि इसकी फाउंडेशन कब बनी, इसकी दीवार कब बनी, इसका गुंबद कब बना, सेम मटेरियल यूज हुआ है या अलग अलग मटेरियल यूज हुआ है। But the same question, sir, अगर आर्कियोलॉजिकल पर्पस के लिए अगर आप वहाँ पे सर्वे करते हैं कि आपको जानकारी जानने के लिए कि यहाँ पे हिस्टोरिकल साइट है, इसमें इज इट बिल्ट ऑन अ ruin of a temple or any other structure, that's fine. But then what exactly is the intent for a lawsuit to be filed? That's the question that was also raised, as was mentioned क्लियर है by Justice Ansari, that the Chief Justice of India, the former Chief Justice of India, said that it is all right to seek for surveys to be conducted, but only if the intent is right. नहीं, इंटेंशन बड़ा क्लियर है। अगर वो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है तो मस्जिद ज़रार है, वहां नमाज पढ़ना हराम है, और मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है तो आज भी मंदिर है, उसका जो कैरेक्टर वो रिस्टोर होना चाहिए, और ये कानून भी कहता। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, ये कैरेक्टर रिस्टोर, जस्ट 30 सेकंड आपको एग्जांपल देता हूं। जिस कानून में जो शब्द यूज होता है वो उसके भले के लिए होता है। जैसे जिस कानून में SC ST लिखा है, इसका मतलब SC ST के भले के लिए है। जिस कानून में विमेन लिखा है यानी महिलाओं के भले के लिए है। जिस कानून में OBC लिखा है इसका मतलब पिछड़ों के भले के लिए है। ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। ये पूजा स्थल कानून है, ये प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन पूजा स्थल यानी मंदिर के पक्ष में होगा, न कि प्रार्थना स्थल। और लास्ट में आपको एडवोकेट उपाध्याय जी, अपने अपना पॉइंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड वेरी वेल। मंदिर के एयरपोर्ट पे कभी प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं होता, एयरपोर्ट पे हमेशा प्लेस ऑफ प्रेयर होता है, क्योंकि प्लेस ऑफ प्रेयर को बदला जा सकता है, प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता। Okay, all right. I'm also going to get a viewpoint from Mr. Syed Nasir Hussain, Member of Parliament, Rajya Sabha from the Congress. Thank you very much for joining us for this discussion and being part of our dialogue. How do you have to view these developments, these unfortunate incidents that are taking place? Sambal particularly, the riots that took place, 12 people died, a situation of communal disharmony happened. Could this have been avoided? See, yesterday there was a fantastic judgment in Supreme Court. They gave a stay on all these mischievous things that are happening in the country, all the mischievous petitions that are being filed in the different courts. I think I welcome that. Two, we have to not just get into the nitty-gritties of the bill of from the Act of 1991. We should understand the times in which it was passed, why it was passed, what did the parliamentarians during that time think about the entire issue that was happening, that was there in the country, in what atmosphere it was brought in. I think they brought in to put a lid on all such issues. We got freedom in 1947. What happened before that? Who invaded? What was Bharat? Till where was Bharat? What was Akhand Bharat? Who came from where? If you look at temples, Hindu temples, you have to think of Jain temples, you have to think of Buddhist worship places. If you start digging up everything, then there will be Shaivites, Vaishnavites. So many things happened in the past. I think 1947 is something which we need to remember. We became a nation, we became a democracy, we need to move on, we need to move forward. We should be a forward-looking, progressive nation. Because for that reason, the Parliament in its wisdom passed that bill
and said, enough is enough, we'll put a lid on this, we'll close this, from except one issue, we'll close it, and here onward, we'll move forward, we'll not get into these issues. I think we have to understand the spirit behind that act, which is very, very important. If people, the ecosystem of Bharatiya Janata Party and the Sangh Parivar, if they really want to search for issues to have a vote bank in this country, to appease people in this country, to have a continuous vote bank on which they want to win elections in different states, they'll start digging up these kind of issues. Come some election in some part of the country, there will be one such issue, which will be MOT in nature, which will be polarizing in character, and on that basis, they'll be winning such kind of issue. If you look at the kind of atmosphere that has been created in this country, every issue is anti-minority, anti-Muslim. Why is it that? They want to polarize it. It is not Hindu-Muslim issue. It is the issue of BJP and that mindset versus the people, those who want to have this country in the present form, in a democratic form, and to have a country where we need to move forward, where we need to live happily with each other. Now, what is happening here is, which is very, very clear. Important issues of the people, Aam Janata ke mudde, it's all sidelined. These are the issues which are debating. And this is most unpredictable things that are happening in our country, and unpredictable, I call this because this will lead us nowhere. This will lead us nowhere. We need to go forward. We need to emerge as one of the strongest nations. That only can happen with unity and diversity. Absolutely, all right. That was a fantastic point made. Mukhtar Abbas Naqvi ji, आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि abrogation of the Places of Worship Act 1991, is this akin to a movement that could be perceived as anti-Muslim? देखिए, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो सबसे दुनिया के जितने भी संविधान हैं, रिटन हैं, अनरिटन हैं, लिखित हैं, अलिखित हैं, उनमें सबसे बड़ा और बड़ा ही नहीं, बहुत व्यापक है। और इसीलिए जो है वो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। जितनी भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है हमारा, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे विधायिक कार्यपालिका, जितनी भी हैं, वो सब के सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुलाजिम है। कॉन्स्टिट्यूशन को उन्हें फॉलो करना है। अब सवाल पैदा होता है कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जो हमारे संविधान बनाया, तो उसमें कई ऐसे पहलू हैं जिसे हम आज भी चेंज नहीं कर सकते। वो पत्थर की लकीर है। उस बहुत बार 106 बार 7 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, और उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी उन जो पहलुओं को कभी भी जो है वो टच नहीं किया गया। वो पहलू है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की। और जो अभी हमारे अश्वनी जी कह रहे थे, देखिए एक चीज़ हमें समझना होगा कि हम किसी भी समस्या का समाधान हमें करना होगा, उसे नेवर एंडिंग समस्या नहीं बनाना होगा। ये बात सही है, जो बात आपने कही उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत पहले कुछ विदेशी आक्रमणकारी आए, उनकी कुछ क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूतें हुई, और जिसका कि खमियाजा भी बहुत वर्षों तक देश ने भुगता। लेकिन आज जो है हमें तमाम ऐसे पहलू, जिन पहलुओं को कि हम समाधान के रास्ते पर, अपने जैसे बाबरी मस्जिद का इशू था, लगभग 600 साल तक जो है वो राम मंदिर मुद्दे को लेकर के आंदोलन हुआ, संघर्ष हुए, कुर्बानियाँ हुई, फिर कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमस डिसीजन किया, और सभी वर्गों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उन्होंने जो है उसका स्वागत भी किया और सम्मान भी किया, और वो इशू क्लोज हो गया। कुछ और इश्यूज हैं जिन इश्यूज को कि जिसको कि जो है वो करेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन हर इशू जो है वो करेक्ट करने के लिए रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता। कुछ इश्यूज हैं, डेफिनेटली कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिन इश्यूज को कि जो बहुत ही गंभीर आस्था से जुड़े हुए हैं, और उसका जो है वो सोल्यूशन होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल
हमारे लिए जो है वो किसी भी लोकतंत्र के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो धर्म ग्रंथ है उस लोकतंत्र का। तो इसलिए हम उस दिशा में हमें चलना चाहिए और समाधान जो है वो निकालने की जरूरत होनी चाहिए। और अदरवाइज तो जो है वो न हम नशी न किसी हम सफर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। So Nayan Khurshidi, आपका इस पे क्या कहना है? How do you view this? Do you think this is petty politics of vote bank that is being played out over here? See, I would be unfair to those who presumably honestly believe what they are doing is a matter of their faith. So I will not be unfair to them. If political people get involved, then one can certainly say that people are trying to take political advantage. But if somebody believes he's doing it as a matter of faith, we must respect them. Because the very purpose of this legislation is not to be pointing fingers at each other. The whole purpose of this legislation is that now let us come together and live together. I have a very educational opportunity right now to discover that this is an issue of Islam, that Islam prohibits such places of prayer, of places of worship, because none of the suits that have been filed for a declaration on behalf of Muslims that this is something that the Muslims should not be inflicted upon, etc. But if we continue to look at these ways and means of hurting each other, they are endless, absolutely endless. Do we believe in this country? Do we believe in the constitution that you've just given to us? If we do, then we have to learn to take some burdens and move forward to say that we have a shared destination. The message that must go is that we have a shared destination and we believe and we will give up anything for this. And I think that was the attempt that the Supreme Court also made at the time of the Ayodhya dispute, that if we can come together and find a solution. So there was no solution was found before the Supreme Court pronounced, but after the Supreme Court's pronouncement, one got a feeling that this is a solution and this is being accepted across the board. Now let's not unsettle that. Let us not destroy that good feeling that emerged after a long time, that we are now together. There is no need now to continue to pull ourselves asunder. And I would just appeal to everybody. If you have faith in each other, you are going to be a much more powerful country in the world than you can ever imagine. Absolutely. I'll come to you, Advocate Upadhyay. Let me get in Justice Iqbal Ansari as well to seek a comment from him. Okay, fine, go ahead. Yes. सलमान सर, आप 1991 गवर्नमेंट में क्या थे उस समय? आप कानून मंत्री थे? अच्छा, ठीक है। देखिए, मैं आपको दो कानून दिखा रहा हूं, एक 1991 का है, एक 1995 का है। वक्फ एक्ट है, दूसरा है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैं तो ये कह रहा हूं, जब वक्फ एक्ट बना उसमें वक्फ बोर्ड दिया, आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड दे दीजिए। वक्फ एक्ट में वक्फ ट्रिब्यूनल है, आप प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल दे दीजिए। वक्फ एक्ट में वक्फ सर्वेयर है, आप प्लेस ऑफ वर्शिप का सर्वेयर दे दीजिए। तो जैसे इसमें कोई कट ऑफ डेट नहीं है, इसमें 1947 की कट ऑफ डेट नहीं है इसमें वक्फ एक्ट में, यह अनलिमिटेड है कि 1500 साल पुराने गांव को भी आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप इसकी भी कट ऑफ डेट निकाल दीजिए, दोनों कानून को एक बराबर कर दीजिए। ये तो नहीं चलेगा, एक तरफ आपने कोर्ट का दरवाजा बंद किया और वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया, दूसरी तरफ न ट्रिब्यूनल बनाया और कोर्ट का दरवाजा बंद किया। हिंदू यहाँ हजारों साल से नाइंसाफी झेल रहे हैं। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये भारत की संप्रभुता का मामला है। और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुगलों ने न यहाँ कोई नया शहर बसाया, न उन्होंने कोई मस्जिद बनाई। उनके पास अयोध्या में खाली जगह की कमी नहीं थी, लेकिन उनको जन्मभूमि के ऊपर ही बनाना था। मथुरा में खाली जगह की कमी नहीं थी, बना सकते थे, नहीं, उनको जन्मभूमि के ऊपर बनाना था। मैं 20 सेकंड में बताता हूं उन्होंने क्या किया। जितने पौराणिक स्थान थे जिनका वर्णन वेद
वेद पुराण उपनिषद में था उनका नाम बदला। जैसे भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा, उन्होंने गजप्रस को गाजियाबाद बना दिया, तिलप्रस को फरीदाबाद बना दिया, सोनप्रस को सोनीपत बना दिया, पानप्रस को पानीपत बना दिया। द्रौपदी जहां पैदा हुई उसको पांचाल कहते हैं, उस पांचाल को फर्रुखाबाद बना दिया। जहां पांडवों ने अज्ञातवास किया उसको विराट कहते हैं, उन्होंने विराट को होशियारपुर बना दिया। हमारा एक शक्तिपीठ कीर्तेश्वरी, उसको उन्होंने मुर्शिदाबाद बना दिया। हमारा दूसरा शक्तिपीठ विंध्याचल, उसको मिर्जापुर बना दिया। हमारा एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान था जमदग्निपुरम, जौना खान ने उसको जौनपुर बना दिया। तो उन्होंने क्या किया, कोई नया शहर नहीं बसाया। उन्होंने एक बार कंप्लीट कर रहा हूं, उन्होंने हमारे पौराणिक शहरों का नाम बदल के हमारा नामो निशान मिटाया। अब दूसरा, कोई एक नई मस्जिद नहीं बनाई नमाज पढ़ने के लिए, हमारे स्वाभिमान को कुचला, हमारा नामो निशान मिटाने की कोशिश किया। अब आज की डेट में हम वेद पुराण उपनिषद सत्यार्थ प्रकाश के जो नाम ढूंढते हैं, हमको भारत के नक्शे पर नाम नहीं मिलते, और हम उन मंदिरों को ढूंढते हैं, वो मंदिर नहीं study in our history books? Why don't we have lectures? Why don't we speak about this? Is it necessary to destroy the entire country and then rebuild it all मैं तो कह again? रहा हूँ वो मस्जिद ज़रार है, वो मस्जिद ज़रार है, वहाँ मुस्लिम के लिए नमाज okay. पढ़ना हराम है। Okay, Sayyid Nazir Hussain. Yeah. मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से सब कुछ निकाल के लाए हैं। लेकिन एक चीज मैं अभी कंफ्यूज हूँ, वो आपने मुल्ला का, आनंद नारायण मुल्ला जी का वो आपने कोट किया है क्या? नहीं, मुल्ला की एक मुल्ला का पूरा अच्छा, ठीक, बहुत बड़े जूरिस्ट Okay. है। नहीं, मुल्ला बहुत बड़े जूरिस्ट है। Okay. सुप्रीम कोर्ट में उनका कोर्ट किया था। Okay. Okay, Sayyid Nazir Hussain ji. ये उपाध्याय जी जो है वफ के बारे में बात कर रहे थे, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे ये बता दें, ये वफ एक्ट में कहाँ ये लिखा हुआ है कि कोई भी वफ बोर्ड या कोई भी वफ जो है किसी भी जमीन को अपनी जमीन करके हथिया सकता है, नंबर 1। नंबर 2, शायद इनको पता नहीं है कि एंडोमेंट बोर्ड्स हैं, मुजराई डिपार्टमेंट्स हैं, हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट्स हैं, हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में। और मैंने, क्योंकि जेपीसी वक्फ का मेंबर हूं मैं, और वक्फ बोर्ड का भी मेंबर हूं कर्नाटका में 6 साल से, मैंने देखा है और पूरा कंपेयर करने की कोशिश की है। जिस तरह के प्रोविजंस वक्फ में है, लगभग उसी तरह के प्रोविजन, नाम अलग अलग दिया होगा, कहीं ट्राइब्यूनल दिया होगा, कहीं असिस्टेंट कमिश्नर दिया होगा, लगभग उसी तरह का जो है पावर्स वहां भी दिया गया है। एंडोमेंट का मतलब वक्फ है, वक्फ का मतलब एंडोमेंट ही है। एंडोमेंट बोर्ड पूरे ही स्टेट्स में, नंबर 1। नंबर 2 जो है, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे देश में सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, क्रिश्चियंस के प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जैन्स के हैं, बुद्धिस्ट के हैं, सिख्स के हैं। लेट देयर बी ए पैरिटी, लेट देयर बी पैरिटी एवरीवेयर। अब जो एंडोमेंट में जो लगभग उसी तरह के हैं, लगभग उसी तरह के हैं। अगर सरकार चाहे, अब इनके लिए एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, वक्फ का उन्होंने लेके आया है, साथ में वो सारे एंडोमेंट बोर्ड, सारे हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अलग अलग स्टेट में है, हिंदू प्लेसेस एक्ट, रिलीजियस प्लेसेस एक्ट अलग अलग स्टेट में, सबको कंबाइन करते हैं, एक तरह के सबके लिए करते हैं। वे वेलकम है, बहुत अच्छा। मैं करेक्ट कर दूं। I know we would love to have this discussion and it will go on for hours, and we'll do that in the future as well on our NewsX and India News platform. Okay, 30 ये seconds. सबसे बड़ा फैक्चुअल रॉन्ग है कि हिंदुओं के पास वैसा ही कानून है जैसा वक्फ के पास। ये सबसे बड़ा सच्चाई तो ये है कि 4 लाख मठ मंदिरों पे सरकार का कंट्रोल है, किसी एक मस्जिद पे सरकार का कंट्रोल नहीं, किसी एक दरगाह पे सरकार का कंट्रोल नहीं, किसी एक चर्च पे सरकार का कंट्रोल नहीं। मुंबई में सिद्धि विनायक सरकार के कंट्रोल में है, हाजी अली की I know दरगाह there are नहीं है। a lot of issues, grievances, but what I'm talking about is the places of worship. वक्फ बोर्ड क्या है, किसके अंडर है? वक्फ बोर्ड का एक मंत्री होता है, मंत्री सरकार का होता है। पूरा वक्फ बोर्ड सरकार के कंट्रोल में है, पूरी स्टेट में है, हर सारे, और सारे मुस्लिम इदारे वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं। वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर होता है, वक्फ बोर्ड के ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, इनके अंडर जो है वक्फ काउंसिल आता है। वक्फ काउंसिल पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करता है। आपको पता नहीं घर क्यों बच जा रहे हैं? Okay, all right. आपको क्या आइए हमारे, आपको पता नहीं क्या बोलते हैं? पढ़ के आइए आप, पढ़ के आइए, Mukhtar Abbas पढ़ के आइए, आप Naqvi, पता he'll नहीं। make a statement before I wrap this up. Yes. देखिए ऐसा कानून हिंदुओं के लिए कौन सा बताइए? मैं वक्फ एक्ट जैसा कानून हिंदुओं के देखिए लिए कौन सा? आप सारे स्टेट के हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट पढ़ लीजिए, हिंदू रिलीजियस, हिंदू
वर्शिप एक्ट पढ़ लीजिए, उड़ीसा का पढ़ लीजिए, बिहार का पढ़ लीजिए, तेलंगाना का पढ़ लीजिए, मेरे स्टेट कर्नाटका का पढ़ लीजिए, आंध्र प्रदेश का पढ़ लीजिए, तमिलनाडु का पढ़ लीजिए। आप नहीं मिसकोट नहीं, Okay. आप पढ़िए, मैं Okay, आपके साथ we understand the point. Yes. Okay. आप बैठिए मेरे साथ। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो रूट काज है उसको बहुत अभी डिटेल में अश्विनी जी ने कहा, मैं नहीं कहूंगा वक्त का जो सिस्टम है उसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की जो है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेरार्की के फ्रेमवर्क में लाना चाहिए। वक्त का जो सिस्टम है उसको जो असंवैधानिक अराजकता है उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना चाहिए, एक चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वही हकदार हैं किनारों के जो बदलने बहाव धारों के। तो अब ये बहाव धारों का बदलिए और कहाँ तक मोहन जोदड़ो हड़प्पा मंदिर मस्जिद निकालते रहेंगे। धन्यवाद। सर एक मिनट, सर मैं कांग्रेस का एमपी हूं, जेपीसी का मेंबर हूं, मुसलमान हूं। मैं आपको कह रहा हूं आपकी सरकार सेंटर में है, सारे रिलीजियंस को, सारे कम्युनिटीज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को एक तरह के एक्ट में लेके आया। We are ready for that. Absolutely. Okay, all right. On that note, I'm completely out of time. I thank all of you for joining me. And it has been an insightful conversation. Debates, yes, but debates lead to consensus building. And that's what we are here for. Thank you all. Thank you once again, Salman Khurshid, Justice Iqbal Ansari, Syed Nasir Hussain, Mukhtar Abbas Naqvi, and Ashwini Kumar Upadhyay for joining us at the third Law and Constitution Dialogue. What an absolutely riveting conversation it's been on one of the most pressing matters. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to introduce the chief guest for our keynote session, Justice Suryakant, Honorable Judge of the Supreme Court of India. Let us welcome Justice Suryakant with a huge round of applause. I take